تو مٹی کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جس میں جو ہے وہ بہت سے معدنیات ہیں، بہت سی جو ہے چیزیں جو ہے وٹامنس ہیں، بہت سے جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں جتنی بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نے پیدائش کے اندر مٹی کو استعمال کیا ہے، اور مٹی میں جو ہے یہ ساری چیزیں شامل ہیں، وٹامن شامل ہے، منرلس شامل ہیں، اور اس کے بعد دیگر چیزیں شامل ہیں۔ تو میرے پاس کچھ بکس ہیں، آج میں ان کے بارے میں جو ہے وہ اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پریکٹیکل گائناکالوجی جو ہے بہت زبردست بک ہے، اور یہ بھی امپورٹڈ ہے۔ تو ایک وٹامن کی بک ہے ان میڈیکل پریکٹس، یہ جو ہے یہ 1953 کی لکھی ہوئی ہے، تو سوئٹزرلینڈ کی یہ چھایا کی ہوئی ہے، اور بہت ہی پیاری بک ہے۔ اسی طریقہ سے بایو کیمسٹری آف سیل وال اینڈ دا میمبرین آف دا فنجائی، بہت زبردست بک ہے جی، اور بہت ہی پیاری بک ہے۔ اسی طریقہ سے یور بیبیز سیکس ناؤ یو کین چوائس بائی ڈاکٹر کیسرے کنزال نے لکھی ہوئی ہے، بہت پیاری بک ہے جی، اور یہ اویلیبل ایٹ میاں فضل الدین اینڈ سنس چیئرمین کے پاس یہ اویلیبل ہے، اور اس کو آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں مختلف جگہوں سے۔ اسی طریقہ سے علاج بالغذا تحقیقات ہے جی، بڑی زبردست قسم کی بک ہے جی، یہ حکیم صابر ملتانی کی لکھی ہوئی ہے، بیسیکلی حکیم یاسین کی تصانیف ہے۔ اگلی بک میرے پاس ہے جی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایلیمنٹس آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ ایوان کی لکھی ہوئی ہے، بہت پیاری بک ہے جی۔ اسی طریقہ سے فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارٹ 1 کی، یہ بھی جے ایوان کی لکھی ہوئی ہے، بہت پیاری تو بہت پیاری بک ہے یہ والی جی۔ اسی طریقہ سے فوڈ دیٹ ہیل دا نیچرل وے ٹو گڈ ہیلتھ، تو گڈ ہیلتھ کے لیے بہت پیاری بک ہے یہ بھی۔ تو اس کے بعد ڈیزیز آف اسکن ہے، بہت پیاری بک ہے جی، اور اسی بک سے جو ہے میرے پاس جو ہے وہ جینسو وٹ نکلا ہے اس بک کے اندر سے، اور ساتھ جو ہے وہ جینسو وٹ کے اندر کیا کیا ہے یہ اس نے بتایا ہے۔ یہ ساری بکس جو ہے بہت پیاری ہے۔ اس میں زنک سالٹ ہے، زنک سالٹ کے بارے میں آج ہم جانیں گے، اور زنک سالٹ جو ہے یہ بہت ہی مفید چیز ہے، جس کو کہتے ہیں زیڈ این، اس کا فارمولا ہے، انسانی صحت کے لیے بہت مفید۔ ڈاکٹر خالد احمد جنجو ایم ایل کی بک ہے، کرشی حلوہ، اور اس کے اندر بہت زیادہ اچھا جو ہے وہ مواد جو ہے وہ ہمارے دوستوں کے لیے اور موجود ہے، جس میں ہم بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر، سائنس کی دنیا میں، انسانی جسم کے اندر ٹریس میٹل کی افادیت صدی میں جو ہے وہ 45 سے پہلے ٹریس میٹل کی افادیت کا اندازہ، اس کے استعمال طبی اسلامی اور بعد زیادہ کیا جاتا ہے۔ اٹامک ابزارپشن اسپیکٹرم کے مطابق اس کی ایجاد بایو کیمک
اور طب سے جو ہے وہ انقلاب پیدا ہو گیا. اسلامی طب نے ٹریس میٹل کو کشتجات کیلس کے نام سے منسوب کیا ہوا ہے. یہ ٹریس میٹل ہمارے جسم کے اندر نیچرلی طور پر موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ مٹی کے اندر بیسیکلی طور پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے جسم کو مختلف قسم کی طاقت اور توانائی جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں. ٹریس میٹل قلیل دھاتی مرکبات کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں. حیاتین یعنی کہ وٹامن جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں سے بھی ان کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ ہی جو ہے ہمارے کروموسوم بن سکتے ہیں، نہ ہمارا جسم بن سکتا ہے، نہ ہمارا بلڈ بن سکتا ہے، نہ ہماری آنکھوں کی روشنی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ مکمل طور پہ نظر آ سکتا ہے. ہماری آنکھوں کی بناوٹ، ہماری جلد کی بناوٹ اور ہمارے پورے جسم کی بناوٹ جو ہے وہ ٹریس میٹل پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ہمارے ہارمونز کا بھی لازمی حصہ ہے اور ہمارے کروموسوم کا بھی لازمی حصہ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ جو ہے وہ مسنجر آر این اے اور مسنجر ڈی این اے میں بھی جو ہے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جلد کے اندر ہمارے جسم کی پروٹیکشن کرتے ہیں، خاص طور پہ ہماری امیونٹی پاور کو بہت بڑھاتے ہیں. جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے بھی میں بات کر رہا ہوں اس میں جو ہے وہ اصل میں جنسن فیکٹ، میگنیشیم سالٹ، زنک سالٹ، نیچرل کیلشیم اور سلفر، یہ 4-5 چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جو فزیکل، مینٹل، ریسٹرکٹیو اینڈ ایکٹیو اینڈ امینولوجیکل ڈس آرڈرس. یہ ہر قسم کے ڈس آرڈر کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پہ جلدی ڈس آرڈر جس کے اندر ہو جاتے ہیں، خارش، چمبل، ازیما اور اس قسم کے جلدی امراض بہت زیادہ جو ہے جن کے اندر ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے. پرانے زمانے میں زنک کے مرکبات کو بطور سرما استعمال کیا جاتا تھا. اس ٹریس میٹل کو زندگی میں جو ہے وہ بطور ٹریس میٹل استعمال کیا گیا ہے. سرما جو ہے یہ آنکھوں کی روشنی کو تیز کرتا ہے اور آنکھوں کی صفائی کرنے میں بہت ہی مفید ہے. مثل خوراک
मिला के मरहम बनाते थे जिंक ऑक्साइड का, जो बहुत ही मुफीद था। तो इस तरीके से जिंक क्लोराइड को हम कुव्वत हिस्स की कमी और खुशी के पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। दांतों की ताकत और दांतों को मसूड़ों की ताकत के लिए हम इसका इस्तेमाल करते थे। मस्तूरात के लिए जो है वो जिंक के अंदर डोज करने का हम मशवरा देते थे, जैसे कि हम कांडी या जिसको खूह वाली दवाई कहते हैं KMNO4 को हम एज एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से जिंक सल्फेट को हम इस्तेमाल किया करते थे। अब इसका जमाना कम होता जा रहा है। आंखों के अमराज के लिए भी जिल्द हम जो है उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं। मैदा के लिए जिंक फ्लोराइड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता था। जिंक एसीटेट का जो है वो सेरशुदा महलूल खारिश पैदा करता है, इसलिए जरासीम कुछ अमल रखता है। जहां भी ये और ये एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से तमाम किस्म की जल्दी बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद था और अब भी मुफीद है। इसी तरीके से तिब्बी इस्लामी के अंदर अतिबा ने अभी तक जो है जिनके बहुत ज्यादा मुरकबात का इस्तेमाल किया है। खास तौर पे पुराने जमाने में जिंक का कुश्ता हम बनाया करते थे, जिंक लेके जैडन उसको मुख्तलिफ फलों के अंदर जो है वो घोल दिया करते थे। पहले सबसे जो है वो नींबू का पानी उसके अंदर डालते थे, सिट्रिक एसिड डालते थे, और उसके बाद जो है सिट्रिक एसिड के अलावा अंगूरी सिरका हम डालते थे। उसके बाद मुख्तलिफ फलों का पानी उसको देते थे और खर्ल करते थे। इस तरीके से जिंक का कुश्ता हम तैयार करते थे, कैलस तैयार करते थे। उसको जो है वो आग दे के उसके बाद जब वो तैरना शुरू हो जाता था तो हम ये कहते थे कि ये जो है वो 3-4 महीने उसको हम खूब जो है वो रगड़ा देते थे। तो इस तरह से जिंक का कुश्ता हम तैयार करते थे। उसमें मुख्तलिफ किस्म के फलों के जूसेस हम इस्तेमाल करते थे। तेजाब के तौर पर सिट्रिक एसिड, अस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड और ग्लूकानिक एसिड का हम इसमें इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म की तब्दीली आती थी। कुश्ता जिसके नाम से जो है वो मंसूब किया जाता था, क्योंकि नामियाती तेजाब आहिस्ता आहिस्ता दांतों के साथ अपना अमल करके इस तरीके से इसका जूस खर्ल करके आहिस्ता आहिस्ता रगड़ा जाता था, और फिर इसके बाद दांत के जर्रात बारीक करके हम इसको जो है वो एक जब पानी की सतह पर ये तैरना शुरू कर देता है तो हम इसको कहते हैं ये अब कुश्ता जो है वो तैयार हो गया है। तो ये बहुत कम नुकसान से होता था। तो इस तरीके से आंखों के इलाज के लिए हम जो है इसका सुरमा इस्तेमाल करते थे, और क्लिनिकल ट्रायल के तौर पर जो है वो कुछ तजाद के इस्तेमाल से जो है वो जिनसी हार्मोन की रफ्तार बढ़ जाती थी, और जल्दी अमराज में जो है इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। इसी तरीके से प्रोस्टेट का बढ़ जाना और
में जो है जिस पौधे के अंदर जिल्द जिसकी कमी होती है। तजर्बात ने साबित किया है कि जानवरों के अंदर भी जिसकी कमी की वजह से बहुत ज़्यादा नशोन्मार का रुक जाना और जिनसी कुव्वत का ख़त्म हो जाना और फालतू जिसके मतलब रकबात से जो है वो खातर खान नतज जो है वो बरामद हुए हैं। डॉक्टर साहब ने बंदरों के ऊपर तजर्बात किए, मुर्गियों के ऊपर तजर्बात किए, खरगोशों के ऊपर तजर्बात किए, चूहों के ऊपर तजर्बात किए और इसी तरीक़ा से जो है बिल्लियों के ऊपर तजर्बात किए, बैलों के ऊपर तजर्बात किए, औरतों में जिसकी कमी को नोट किया और बच्चों में जिसकी कमी के साथ देखे और उनके बाद जो है वो जितने भी जो है वो साइकिल सेल एनीमिया, जिसमें जो है खास तौर पे जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें आरबीसी टूट कर जो है वो दातरी की तरह जाते हैं, चांदनुमा हो जाते हैं, जैसे दातरी होती है बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं, तो वो आधे रह जाते हैं। उसकी शक्ल गोल होती है, बैजरी शक्ल बिल्कुल होती है, वो आधा बैजा रह जाता है। तो इस ये जो है जिसके अंदर जो है वो जिसकी कमी बच्चों के अंदर हो तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये एक निशानी है कि इसके अंदर जो है वो जिसकी कमी है। जिसकी कमी की बहुत ज़्यादा वजूहात है और उसकी बहुत ज़्यादा अलामात है। नाखनों में सफ़ेद धब्बे जो है वो जिसकी कमी की मेन अलामत है। इसी तरीके से जिसकी कमी की वजह से गले के अमराज, सर के बालों का गिर जाना और इसी तरीके से जो है वो जिसकी कमी की वजह से जो है वो दूध के अंदर फर्क और बरतानवी साइंसदानों ने जो है वो साबित किया है कि जिंक की कमी की वजह से जिसकी कमी की वजह से कुव्वत मदाफत के अंदर कमी आ जाती है। तो हमें कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं लेनी चाहिए जिसके अंदर जिस जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में पाई जाती है और कितनी मकदार में पाई जाती है। पार्ले जिसको जौ कहते हैं 2.4 मिलीग्राम, मकई 1.4 मिलीग्राम, चावल 1.9 मिलीग्राम, चने 1.3 मिलीग्राम, गंदम 2.5 मिलीग्राम, मीठे आलू 2 मिलीग्राम, लोबिया 4.3 मिलीग्राम, लेटल 2.2 मिलीग्राम, मटर 4 मिलीग्राम। इस तरीके से प्याज के अंदर 9.5 मिलीग्राम, शलजम के अंदर 2 मिलीग्राम, अंगूर के अंदर 1 मिलीग्राम जो है वो पाई जाती है। जिगर के अंदर 1.1 मिलीग्राम, फेफड़े के अंदर 81 मिलीग्राम और लबनबा के अंदर जो है 45 मिलीग्राम जो है वो पाई जाती है। इसी तरह से कैंसर के मरीजों और आंखों के अमराज के लिए जो है वो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरीके से आखिर में दोस्तों की फरमाइश पर आज फिर जो है एक छोटी सी अभी हमने जिंक की बात की और जिसमें जो है दोस्त कहते हैं कि आप जो है इसको जारी रखा करें, एक दो शेर जो है वो जरूर सुनाया करें और अपनी नज़म को जारी रखें। दोस्तों को बहुत पसंद है, जिन लोगों ने पढ़ी हुई है वो असरार करते हैं। हिकमत है रब की अता, डॉक्टरों का है यहूदी पेशवा, वली को चुना है वली को चुना है वली को है चुना, वली को रब ने चुना, वली को है रब ने चुना। दोबारा इसको पढ़ देता हूँ जी दोस्तों के लिए। हिकमत है रब की अता, डॉक्टरों का है यहूदी पेशवा, वली को है रब ने चुना। इस तरीके से जो है ये नज़म जो है वो जारी है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी बातें जो है हम इसको जारी रखेंगे। तो तरबूज का पानी, सेब का पानी, कद्दू का पानी कैसे निकालते हैं, इसको जो है ये तशविया कर लेते हैं। तशविया क्या होता है, हम जो है भुगल के अंदर जो है वो कद्दू को, सेब को, तरबूज को रख देते हैं, उसका पानी उसके अंदर जमा हो जाता है, तो उसको निकाल के उसके अंदर जो है हम जिस डालते हैं और इस तरीके से जो है उसको खर्ल करते जाते हैं। तो ये जो है जिस जो है वो तकल्लस यानी कि तकलीस करने, कैलस बनाने में जो है वो अहम किरदार अदा करती है। ये कह लाने में भी जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है, जैसे कि रेमद असारा काम करता है। तो अभी हम थोड़ी सी और एक आध नज़म को हम इसको जो है वो जारी रखेंगे।
जहाँ तक चलता हो दवा काम गजा से, बचना चाहिए दवा से। जहाँ तक काम चलता हो गजा से, बचना चाहिए दवा से। जहाँ तक चाहिए बचना चाहिए दवा से। अगर खून कम है बलगम ज्यादा, तो इस्तेमाल कर गाजर शलगम ज्यादा, चने ज्यादा। अगर खून कम हो बलगम ज्यादा, तो इस्तेमाल कर गाजर शलजम ज्यादा। अगर कुछ को लगे जोड़ों में सर्दी, तो इस्तेमाल कर अंडे की जर्दी। अगर तुझको लगे ठंड में गर्मी, तो इस्तेमाल कर दही ज्यादा। तो इस तरीका से हम जो है अशार को वो जारी रखेंगे मजीद। तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत मशहूर हूँ जो वो मुझे मौका देते हैं, और अल्लाह ताला ने जिंक को पैदा किया है। तो जिंक जो है वो बालों के लिए बड़ी मुफीद है। लंबे बाल करने के लिए औरतों में जो है वो उसको इस्तेमाल करो। हम इसका कैलस या कुश्ता इस्तेमाल करवाते हैं, बहुत मुफीद है जी। तो हम जिंक को मजीद जारी रखेंगे, और कल भी जो है वो जिंक के बारे में जो है मजीद इसी को जो है वो आगे चलाएंगे। डॉक्टर साहब को बहुत मशहूर हूँ। तो कुश्ता जो है नुकसानदेह नहीं, जिसका कुश्ता नुकसान नहीं होता, ये हमारे गुर्दों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे जिस्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तमाम एलोपैथिक में भी जो जिंक का इस्तेमाल किया जा रहा है, होम्योपैथिक में भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और तिब्बे यूनानी में भी इसका इस्तेमाल जो है बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। ये ट्रेस मेटल है, जिंक ऑक्साइड का मैं इस्तेमाल जो है मरमों की सूरत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जिंक सल्फेट का मैं मरमों की सूरत में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और ये जिंक जो है वो बहुत ही मुफीद है, और हमें ताकत और तवानाई मुहैया करने के साथ हमारी क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा करता है। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया, और मेरे दोस्तों और भाइयों का। तो मैं मालूम खाऊँ अगर किसी को जो है वो यहूदी पेशवा कहने से जो है ये कुछ जो है किसी को दुख पहुंचा है, लेकिन हकीकत बात जो है वो यही होती है। थैंक यू।